So students, according to this theorem, the sum of the measure of the exterior angle of any polygon is 360. Your next exercise, ये exercise ये कौन सी है? This is 3.2. Now, next exercise. Exercise 3.2. 3.2. Question number 1. Here, first question. This is a figure. One more line and this line. Find the x in the following figure. Here, first angle is 125 and second angle is 125. This angle is 125. This is also 125. And one more angle, this is x. We have to find the value of x. We know that sum of exterior angle is equal to 360 degree. First angle, this angle is 125 plus 125 plus x equal to 360. 250 plus x is equal to 360 degree. X equal to 360 minus 250. X is equal to 110 degree is your required answer. Okay, students. One more question here. One more figure. This is a first line and one perpendicular line and one more line here. One more perpendicular. This is perpendicular. This is perpendicular, and here get this line. The angle measurement, first angle is 60 degree. This angle 60 degree, and next angle is 70 degree. This angle is 70 degree. This angle is 70 degree. And one more thing, here this is x. We have to find the value of x. We have to find the value of x here. If angle represented by a square symbol, then angle measurement is 90 degree. So by our theorem, sum of exterior angle is equal to 360 degree. So first x plus this angle is 90 degree. This angle is also 90 degree. So 90 plus 60 plus 90 plus 70 plus x nahi sir, here is equal to 360 degree. Or in this situation, total sum is 310 plus x equal to 360 degree. Here
x equal to 360 minus 310. X equal to 360 minus 310. So x is equal to 50 degree. This is the required answer. One more query. Master Dhruv Rajput, ask your question. सर जैसे सर आपने पहले कराया था कि पेंटागन में सर, जैसे पेंटागन है, पेंटागन में से 2 साइड माइनस करके इंटू 180 करना था। हाँ तो सर इसमें तो ऐसे तो नहीं आ पाएगा। हाँ, ये आपके पास दिस पॉलीगन इज हैव हाउ मेनी साइड 1 2 3 4 5 5 दिस इज अ पेंटागन। तो पेंटागन में एक्सटीरियर एंगल से हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना पड़ेगा। सभी का इंटीरियर एंगल आपको जब मिल जाएगा तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हम केवल एक्सटीरियर एंगल का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को इंटीरियर एंगल से भी सॉल्व किया जा सकता है। फिर इंटीरियर निकालेंगे तो फिर एक्स दोबारा निकालना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट is question number 2. Question number 2. In question number 2, find the measure of each exterior angle of a regular polygon of. Regular polygon first is 9 sides, 9 sides, and second is 15 sides. देखिए, if a polygon in there is the triangle, total number of exterior angle is 3. This is a pentagon, total number of exterior angle 5. So if a number is 9, then total number of exterior angle is also 9. Okay, तो हम इसको जो है we have to find the each exterior angle. This is a regular polygon. Regular polygon are equiangular and equilateral. Regular polygon are equiangular and equilateral. So each angle, each exterior angle will be equal. Okay. So here first we know that sum of exterior angles of polygon is equal to 360 degree. Okay, तो यहाँ लिखेंगे 900 according to question के अनुसार 9 into x is equal to 360 degree, where x is exterior angle. मान लीजिए कि x जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है, सो x is equal to 360 by 9. X equal to 360 by 9, then this angle is equal to 40 degree is your required answer. Okay, and if number of sides is 15, so we can also write 15 into x equal to 360. X equal to 360 upon 15, get value 24. So second portion is homework. हमने फर्स्ट को बता दिया एंड सेकेंड होमवर्क है, आप इसे खुद से करके देख सकते हैं। बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। सो स्टूडेंट्स, टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Here in this question, how many sides does the regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24? यहाँ लिखेंगे exterior angle. Exterior angle is equal to 24. Number of sides हमें क्या करना है, we have to find.
we have to find number of sides. So students, here we know that, yeah, first let the number of side be x. Let the number of side is equal to x. So according to question, x into 24, x into 24 equal to 360 degree. X is equal to 360 by 24 and get result 15. This is the required answer. If the exterior angle is 24, then number of side is 15. Okay. Next question. Question number 4. In question 4, how many sides does the regular polygon have if the each of interior angle is 165? Interior angle is equal to 165. हमें उस पॉलीगन का साइड नहीं मालूम है, वो पॉलीगन कैसा है ये भी नहीं मालूम है, केवल इंटीरियर एंगल गिवन है. तो फर्स्ट we know that sum of all exterior angle of polygon is 360 degree. First we find exterior angle. Here interior angle is 165, so exterior angle is equal to 180 minus interior angle. Interior and exterior both are linear pair, both are supplementary, both are linear pair. So if we subtract interior angle from 180, we get exterior angle. 180 minus 165, that is equal to 180 minus 165, that is a 15 degree. 15 degree is the exterior angle. Now students, let the number of side x, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ साइड भी x है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार x into 15 is equal to 360 degree. X equal to 360 divided by 15. If we divide 360 by 15, get result is 24. So number of side be 24 degree is your required answer. In this question, first we find exterior angle, because we know that sum of all exterior angle will be 360 degree. Here only interior angles are given. First we find exterior angle, because interior plus exterior both are linear pair, both are supplementary. If we subtracted interior angle from 180 degree, then get exterior angle. Okay. Next, question number 5. Question number 5. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22? क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन में प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 22 हो जाए? तो हम चेक कर लेते हैं. एक्सटीरियर एंगल क्या है? फर्स्ट पोर्शन, एक्सटीरियर एंगल क्या गिवन है? एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री. ओके, लेट द नंबर ऑफ साइड, let the number of side is equal to x.
so by exterior angle property, that is equal to x into 22 is equal to 360 degree. X equal to 360 by 22. X into 360 by 22. The is here, this is 180 by 11 is not whole number, so it is not possible. ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड हमेशा होल नंबर में होगा, कोई भी नंबर ऑफ साइड फ्रैक्शन में नहीं होगा. ओके, वन क्वेरी मास्टर केशव रस्तोगी. आज का क्वेश्चन बेटा. सर यस आपने नीचे क्या लिखा? यस क्वेश्चन 5 में सबसे नीचे क्या लिखा है आपने? Here this is property. और नीचे और नीचे x into 22 equal to 360. X is equal to 360 upon 22. 180 upon 11 is not whole number. ये whole number नहीं है. It is not possible. यह पॉसिबल नहीं होगा. कोई एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का नहीं हो सकता. मास्टर प्रीत, आस्क योर क्वेश्चन. प्रीत अरोड़ा. सर मेरी जो मैथ की असाइनमेंट है ना, उसके मार्क्स नहीं आए और सबके आ गए. मैथ की असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए? नहीं सर. ओके, आपने लेट सबमिट किया था क्या? नहीं, उसी दिन कर दिया था सर. आपने जो है बेटा, अगर आपने असाइनमेंट जो सबमिट किया है उसके मार्क्स हमने रिटर्न कर चुका हूं मैं. यस सर, टर्न इन करके हैंड इन कर रहा था मैंने. हाँ बेटा, यस सर. अगर आपका असाइनमेंट मिसिंग होगा तो आपके मार्क्स नहीं गए होंगे. प्रॉपर चेक करिए वो असाइनमेंट आपका सबमिट हुआ है. वन मोर क्वेरी, तेजस चौधरी, आस्क योर क्वेश्चन. तेजस चौधरी. यस, आपकी वीडियो ऑफ है बेटा. क्वेरी उन्हीं की मैं लूंगा जिनकी वीडियो ऑन होगी. यस, तेजस चौधरी. सर मेरे भी मार्क्स नहीं आए सर. यस बेटा, आपका असाइनमेंट प्रॉपर सबमिट नहीं है, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ फाइल नहीं दिख रही है. सर मैं आप कृष्णा गुप्ता, आस्क योर क्वेश्चन. कृष्णा गुप्ता. लिसन स्टूडेंट्स, मैं केवल 8th ए और बी, हमारे पास जो नाम है, मैं एक बार आपको असाइनमेंट के जिन बच्चों के हमारे जो आए हैं उनके हमें नाम बोल रहा हूं. यस सर. जिन लोगों ने प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट किया है हमारे पास लिस्ट है. सर अगर मैं लेट सबमिट करता हूँ, सर अगर मैं लेट सबमिट करता हूँ तो सर ऊपर मेरे भी लिखा नहीं आया जाता सर है. अभी. अच्छा बेटा, तो एक बार और मैं आज चेक कर लूंगा और उसके बाद जिनके जिनके होंगे उनके असाइनमेंट के मार्क्स आज मैं सेंड कर दूंगा. ओके सर मेरा एक लेट बार नहीं नाम है तो बोल दो पहले. सर मेरा लेट नहीं है सर उस पे लिखा जाता है सर लेट है. हाँ तो हाँ, सर मैं मेरा बिल्कुल ड्यू डेट आपको आज भेज दूंगा बेटा. सर मेरे भी. नाउ अभी असाइनमेंट के आज एक बार प्रॉपर और मैं आपको रिटर्न करूंगा, और अगर अभी भी नहीं आता है तो फिर आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो अभी असाइनमेंट की भी चर्चा नहीं हो रही है, क्लास चल रहा है. क्लास के बाद मैं आपको जो है
अभी एक बार और मैं असाइनमेंट के मार्क्स आपको रिटर्न करता हूं, जिनके पास नहीं पहुंचा होगा वो दोबारा पहुंच जाएगा। हियर क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन में फिफ्थ में, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये पूछा है कि ये क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है। इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। If second, if interior angle is equal to 22, so exterior angle is equal to 180 minus interior. So 180 minus 22 get result 158. 158. ओके, तो इफ इंटीरियर एंगल, हमारा एक्सटीरियर था तो पॉसिबल नहीं है। इफ इंटीरियर एंगल इज 22 देन we subtract interior angle from 180 get 158. According to question, by property, sum of exterior angle is equal to 360 degree. Let number of sides is equal to x. So x into 158 equal to 360 degree. X equal to 360 upon 158. ओके, अब यहां पर इसको भी चेक करते हैं, क्या ये होल नंबर में कोई नंबर आ रहा है? 2 से 180 by 79, नॉट होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है। कोई भी साइड, नंबर ऑफ साइड फ्रैक्शन में कैसे हो सकती है? तो यहां भी लिखेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं 22 डिग्री इंटीरियर हो सकता है और ना ही 22 एक्सटीरियर हो सकता है। यस, 2 स्टूडेंट्स क्वेरी, clearest only ask a question. प्लीज ask a question. सर वो पहले का रह गया था गलती से। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. हियर in question number 6, question 6, question 6, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Minimum interior angle only the smallest number of sides. Polygon is triangle. Triangle is the minimum number of sides polygon. Okay, so exterior angle of here, what is the minimum interior पूछा है? First we find interior angle. First minimum, यानी हमारे पास भी है इंटीरियर एंगल is equal to 360, सॉरी मिनिमम इंटीरियर की बात हो रही है 180 डिग्री, 180 divided by 3, that is equal to 660. मिनिमम इंटीरियर एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो है
180 होता है. If we divide 180 by 3, get value is 60 degree. Regular polygon, this is an equilateral triangle. In equilateral triangle, minimum interior angle and maximum exterior angle. Second, what is the maximum exterior angle? Maximum exterior angle is equal to, yes, अभी तक क्लास में पहले मैं कॉल करता हूं क्लास में. Yes, तो स्टूडेंट्स, exterior angle is equal to interior and exterior both are linear pair, both are supplementary. So 180 minus 60, that is equal to 180 minus 60 is equal to 120 degree. So maximum exterior angle is 120 degree or minimum interior angle is 60 degree. Master, Dhruv Rajput ask you a question. सर ये पूछना था सर, रेगुलर पॉलीगन. Regular polygon which has both which polygon is equiangular and equilateral. जिस पॉलीगन की सभी साइडें और सभी एंगल बराबर होते हैं वे पॉलीगन जो है रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं. Is that clear? ओके सर. Master Tejas Chaudhary, ask your question. Can you again explain the question number 6? Repeat question number 6. Okay, beta. The question number 6 is, what is the minimum interior angle possible for regular polygon? Minimum interior की बात हो रही है. Minimum interior में हो गया क्या कि सबसे छोटा कम साइड का पॉलीगन कौन सा होता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज ट्रायंगल. Minimum number of side of triangle, we know that sum of angle of interior angle of triangle is 180 degree. If we divide it by 3, then get each interior angle, because the equilateral triangle is equiangular and equilateral. Equilateral triangle में सभी साइड सभी एंगल्स हमारे बराबर होते हैं. तो 180 divided by 3 get one interior angle is 60 degree. अब जिसमें मिनिमम इंटीरियर होगा उसी पॉलीगन में मैक्सिमम एक्सटीरियर भी होगा. इंटीरियर जिसमें सबसे मिनिमम होगा, एक्सटीरियर भी उसमें सबसे ज्यादा होगा. We subtract 160 degree from 180 because interior or exterior both are linear pair. Both are linear pair. Both are supplementary. So 180 minus 60 is equal to 120 degree. Maximum exterior angle is 120 degree. और minimum interior angle is 60 degree. Is that clear? सर हमने ऊपर वाले में सर 180 है सर, एक ट्रायंगल का सम होता है तो उसको 3 से डिवाइड इंटीरियर एंगल निकालने के लिए किया. हाँ बेटा, क्योंकि हमारे पास तीन एंगल का सम जो है 180 है, तीनों एंगल बराबर है, तो एक एंगल हमें फाइंड करना है, तो 180 में हमने 3 का डिवाइड किया. सर ट्रायंगल के एक्सटीरियर का भी सम 180 होता है सर 360. हाँ बिल्कुल 360 होता है. आप 120 120 तीन बार जोड़ के देखिए 360 आएगा. सर ट्रायंगल में भी. हाँ ट्रायंगल में भी बेटा 360 वाला कंसेप्ट ईच एंड एवरी पॉलीगन में ये फॉलो करता है. ओके. यस सर. चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, कोई भी गन का पॉलीगन है उसमें एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है. बट इन ट्रायंगल के केस में सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है और उसके बाद जैसा पॉलीगन जितने ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है उतनी टाइम 180 हो जाता है. जिसका पिछली क्लास में किया था. सर यस. तो क्वेश्चन नंबर 6 में सर y भी बताना है कि y, तो सर y में क्या लिखेंगे? यस. क्वेश्चन नंबर 6 में y पूछा है. हां पूछा है. नहीं पूछ सर, हमने तो सर
सर हमारे में तो सर लिखा हुआ है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। सर 6 के फर्स्ट में पूछा हुआ है सर, हमने खोल सर पीडीएफ खोली थी सर, उसमें लिखा हुआ है What सर। is the minimum interior angle possible for a regular polygon? ये क्वेश्चन सर है उस आपका क्वेश्चन नंबर 6। सर हमारी उसमें फिर उसके बाद लिखा हुआ है वाई। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, वाई का भी आंसर देते हैं हम आपको। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ साइड, जहां मिनिमम नंबर ऑफ साइड होंगे पॉलीगन में वहां मिनिमम नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल होगा। तो ओनली मिनिमम नंबर ऑफ साइड इज 3 इन ट्रायंगल। सो मिनिमम एंगल इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा ट्रायंगल है and this is an equilateral triangle. Regular polygon had 3 sides. Regular polygon is equilateral triangle. We know that each angle of equilateral triangle is 60 degree. Equilateral triangle के each angle कितने के होते हैं? 60 के होते हैं। वहां से डिवीजन आप दे सकते हो। जब आपको समझ में आ गया तो आंसर आप कैसे भी आप दे सकते हो। ओके? यस सर। हाँ। तो अभी 5 मिनट अप्रॉक्स बचे हैं। मैं अभी थोड़ा सा इसमें कुछ और आपका डिस्कशन में करना चाह रहा था, तो मैं थोड़ा सा कुछ नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हैं आप लोग। एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम थोड़ा सा अभी जितना टाइम है उस पर हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। Here, the next topic is kinds of quadrilaterals. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के नेम में लिख रहा हूं। फर्स्ट इज ट्रेपेजियम। Trapezium. What is trapezium? Trapezium is a quadrilateral which has pair of parallel sides. Trapezium is a quadrilateral. Here, this is a trapezium. This is name A, B, C, D. A, B, C, D, quadrilateral. A, B, C, D is trapezium because AB is parallel to BC. ये जो साइड है ना, पेयर जो है, ये पेयर आपका क्या है? पैरेलल है। तो ये आपके जो है इसमें कंसेप्ट है कि ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड, एक साइड मिनिमम, मिनिमम जो पेयर है अपोजिट साइड के वो पैरेलल होनी चाहिए। दोनों हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन जो है दो साइड इसके पैरेलल होने कंपलसरी है। ठीक है, तभी ये क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। फिर से डिफिनेशन सुनिएगा ध्यान से, बुक में डिफिनेशन दिया हुआ है, आप उसको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें पैरेलल साइड का पेयर हो, दैट इज अ ट्रेपेजियम। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप। नाउ next type of quadrilateral is kite. आप सभी पतंग उड़ाते हैं, आपको पता होगा काइट कैसी होती है। तो काइट में इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेपेजियम के बारे में, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की हम चर्चा करते हैं, काइट। व्हाट इज काइट? तो काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइट इज अ special type of quadrilateral. The side with the same marking in each figure are equal.
the adjacent side, only pair of adjacent sides will be equal. Pair of adjacent side क्या होता है? Listen students, here this is a type of kite. Pair of adjacent side, ये जो टू लाइन से मैंने जो मेंशन किया है, ये साइड आपस में इक्वल होगी. यहाँ पर जो है मैंने सिंगल लाइन से जो मेंशन किया है, this side is also equal. This is a kite. Name A, B, C, D. Quadrilateral A, B, C, D is kite because AB is equal to AD. This is the adjacent side. And here BC is equal to DC. सभी नहीं होते, केवल जो है एडजेसेंट साइड, दो एडजेसेंट साइड, एक एडजेसेंट आपस में इक्वल होगा, दूसरा एडजेसेंट साइड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. दिस इज अ काइट. दिस इज अ काइट. दिस इज द टाइप ऑफ काइट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो स्टूडेंट्स, देयर इज टू टाइप के बारे में हमने चर्चा किया, डिस्कशन किया. फर्स्ट ट्रेपेजियम एंड सेकंड अ काइट. ओके स्टूडेंट्स, टाइम हमारा जो है कंप्लीट होने वाला है और मैं नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करना है.